Hello student, welcome to online lecture series on electromagnetic fields, electrical engineering semester 4 subject. Myself Kapil Dhama, assistant professor, St. Andrews Institute Technology Management, Farooq Nagar, Gurugram. So student, this is lecture number 15 and unit 3. We will cover the following topics regarding the concept of mutual inductance. Mutual inductance between the long straight wire and the rectangular loop lying in a same plane. Also we discuss the square loop, the mutual inductance concept and log straight conductor, energy stored in a magnetic fields and the classification of magnetic field materials, magnetization and permeability. So student, let's start with our first topic, the concept of mutual inductance. As you know, the concept of mutual inductance, we consider two coupled coils, circuit 1 and circuit 2. As you see in the diagram, there is a I1 and I2 current flowing opposite, and L1 is the L2 in the inductance. So consider two magnetic circuit with two different coils carrying different currents. So in coil 1, number of turns is representing an N1, inductance L1, current I1, magnetic flux produced by the current I1 is equal to phi 11. और कॉइल 2 की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू N2, इंडक्टेंस L2, करंट I2, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द करंट I2, phi 22. तो जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट की मैं फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कॉइल 1, अगर आप देखें तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है phi 11 से, आल्सो लिंक्स विद द कॉइल 2 एंड प्रोड्यूसेस another flux phi 12. Okay students, so similarly flux produced in the coil 2 phi 22 also links with the coil 1 and produces another flux that is representing as phi 21. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं स्टूडेंट, इस वाले डायग्राम में ये जो phi 12 है, ये जब इस वाले फ्लक्स की वजह से पड़ेगा और ये वाला जो है, ये वाला आप देख रहे हो, इस कॉइल 1 की वजह से आपको देखने को मिलेगा. तो स्टूडेंट इसमें लिखता है कि टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑफ आई कॉइल, तो ड्यू टू फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द करंट I2 इन द सेकेंड कॉइल इज नथिंग बट एज N1 टाइम्स ऑफ phi 21. ओके, और अगर हम बात करें फर्स्ट कॉइल की तो ये हुआ N1 टाइम्स ऑफ phi 21. अगर हम बात करें सेकेंड कॉइल के लिए तो ड्यू टू फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द करंट I इन फर्स्ट कॉइल it is representing as N2 times of phi 12. So these are the relations or the formulas we concept we understood in the mutual inductance. So mutual inductance between the circuit 1 and 2 will become as 1 2 1 का 2 के रिस्पेक्ट में जो बनेगा वो बनेगा N2 टाइम्स ऑफ phi 12 डिवाइड बाय N1 I1. सिमिलरली अगर आप 2 का 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो बनेगा N1 phi 21 डिवाइड बाय I2. द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल टू द करंट इन द अनदर कॉइल. So student, this is the concept of mutual inductance. If the medium surrounding the magnetic circuit is linear, then M12 is equal to M21. The mutual inductance depend upon the magnetic interaction between the two currents. Okay students, now if we talk about the mutual inductance between long straight wire and rectangular loop lying in the same plane, so this is representing as plane. ओके, तो प्लेन में जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट की हमने एक जो है तो प्लेन में हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया हुआ है जिसके डायरेक्शंस आप देख रहे हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ A और B से डिफाइन किया हुआ है, और वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस D अपार्ट पर Z एक्सिस के रिप्रेजेंट में वो सेपरेट है. अब सपोज करो कि स्टूडेंट एक रेक्टेंगुलर लूप एंड लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज वन प्लेन, लाइंग द वन प्लेन.
what we do, how we solve find the mutual inductance between these two terminologies. तो कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप विद साइड्स ए एंड बी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर लूप्स के अंदर दो साइड्स ए और बी हैं और वो डिपिक्ट की हुई हैं ए और बी के द्वारा। तो ए लूप इज कीप्ड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट की एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जो कि जेड एक्सिस को डिपेंड कर रहा है, ये डी डिस्टेंस से सेपरेट है। कंसीडर दैट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज सर्किट 1, ए रेक्टेंगुलर लूप इज सर्किट 2। तो दो सर्किट हो गए हमारे पास, एक हमारा इन्फिनाइट लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर जेड एक्सिस के द्वारा जो चल रहा है, और एक दूसरा सर्किट जो कि रेक्टेंगुलर लूप की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस में लाई कर रहा है। तो एम्पियर सर्किट लॉ के हेल्प से हम ये देखेंगे कि म्यू आई डी एल इज इक्वल टू आई, क्लोज करो। तो एच फाई 1 2 पाई आर या ए आप कह लो इज इक्वल टू आई 1। तो एच फाई 1 की वैल्यू जो होगी वो आई डिवाइड बाई 2 पाई ए होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B1 इज नथिंग बट एज B1 टाइम्स ऑफ B फाई 1 ए फाई, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने उसका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H होता है, तो इसलिए देखिए B1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट H1 फाई 1 ए फाई और म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 ओवर 2 पाई ए फाई। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या किया कि अपनी इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट कर लिया 3 इक्वेशन में। तो फ्लक्स लिंकेज इन रेक्टेंगुलर लूप क्या होगा, उसको हमने लैम्डा 1 2 से रिप्रेजेंट किया, इंटीग्रेशन किया B1 DS2, क्योंकि दो सरफेस की बात हो रही है तो वहाँ DS2 लगेगा। अब आप स्टूडेंट देखिए कि जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, डी टाइम्स यानी कि डी आपका डिस्टेंस और डी प्लस ए। तो म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई रो ए फाई, और यहाँ पे आप जैसे सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस आप जैसे कि देखेंगे स्टूडेंट कि हमने डिफरेंशियल पी जो है एक एलिमेंट ले रखा है इन्फिनिटनेसली वेरी स्मॉल वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका देखिए B टाइम्स और BP ए फाई, तो यूनिट वेक्टर हमारा हो गया, जिसमें से म्यू नॉट I1 और B डिवाइड बाई 2 पाई ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो D ओवर D प्लस ए का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो DP ओवर P बन रहा है। तो लैम्डा 1 2 की वैल्यू में जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट म्यू नॉट I1 B बाई 2 पाई, तो 1 बाई एक्स का dx के इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका log x बनेगा, तो इस तरह 1 बाई पी का इंटीग्रेशन करेंगे तो log p बनेगा, d ओवर d प्लस ए बन जाएगा। तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ d प्लस ए माइनस log ऑफ d बन जाएगा। तो इसी तरीके से log ऑफ d प्लस ए डिवाइड बाई d, तो हम इसमें अगर हम अंदर d से डिवाइड करें तो 1 प्लस ए बाई डी बन जाएगा। तो म्यू नॉट I1 B बाई 2 पाई ln इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाई डी, ये वेबर बन जाएगा। दिस इज द फ्लक्स लिंकेज इन रेक्टेंगुलर लूप। ओके, अब वो कहता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ स्क्वायर लूप और एंड स्ट्रेट लाइन कंडक्टर जो होगा उसमें क्या अंतर आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे कि आप देख रहे हैं M12 लैम्डा 1 2 बाई I1। तो अब लैम्डा 1 2 की वैल्यू हमने निकाल दी है म्यू नॉट I1 B बाई 2 पाई ln 1 प्लस ए बाई डी I1। तो I1 से I1 हमने कैंसिल आउट किया तो इट इज़ नियरली इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई ln 1 प्लस ए बाई डी, और B बाहर है। तो इफ़ द लूप इज स्क्वायर विद साइड ए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि अगर वो साइड ए हो जाएगा तो B के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, वो A आ जाएगा। तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगुलर लूप एंड द स्क्वायर लूप। तो व्हेन यू आर गोइंग टू प्रूव द पार्ट ऑफ स्क्वायर लूप देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर लूप रिलेशन विच वी डिस्कस अर्लियर। So this is how the mutual inductance between a square loop and long straight conductor is defined.
Now if we talk about the energy stored in magnetic fields, तो हाउ वी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी किस तरह के स्टोर्ड होती है। तो इंडक्टर इज़ यूज टू स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे कि आप यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से देखें, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू हाफ आई एल आई स्क्वायर। तो कंसीडर ए डिफरेंशियल वॉल्यूम इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट की एक्स वाई जेड प्लेन में हमने एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लिया हुआ है। Differential volume means are infinitesimally very small element. So consider that at the top and bottom surface of the differential volume, conducting sheets with the current delta I are present. तो इंडक्टेंस del I is equal to del phi over del I. तो del phi को हम लिखेंगे b डॉट डी एस ओवर del I। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज बी डॉट डी एस हमारा सरफेस इंटीग्रल होता है। तो डिफरेंशियल सरफेस एरिया इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू डेल जेड, ऊपर वाला। तो डेल एल की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ हुई बी टाइम्स ऑफ डेल एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल आई, और बी हम जैसे जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू एच होती है। तो दोनों इक्वेशंस हम इस पर थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं। तो हमने बी की वैल्यू यहाँ डाली म्यू एच डेल एक्स डेल जेड डिवाइड बाई डेल आई। तो डिफरेंशियल करंट स्टूडेंट हमारा जो बनेगा, तो डेल आई इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ डेल वाई। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस ऑफ ए डिफरेंशियल वॉल्यूम इज हाफ एल आई स्क्वायर, बट हम डिफरेंशियल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डेल एल प्लस इंटू डेल एक्स का स्क्वायर। तो डेल एल हमने पहले ये भी निकाला म्यू एच डेल एक्स डेल जेड डिवाइड बाई डेल आई, और डेल एक्स की वैल्यू निकाली, वो क्या है एच टाइम्स ऑफ डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट कि हमारा कुछ ऐसा कोई ऐसा पार्ट है जो कट रहा हो, तो म्यू एच डेल एक्स डेल जेड एच स्क्वायर बन जाएगा, ओके, एच क्यूब बन जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो ये एच क्यूब और एच से ये कट जाएगा, तो हमारे पास खाली हाफ म्यू एच स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बनेगा। और जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि डेल एक्स वाई जेड हमारा क्या होता है वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा डेल वी। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड्स। नाउ स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, these are classified into various categories like diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, anti-ferromagnetic, ferrimagnetic. Ferro and ferri are both things, supermagnetic. These are the some classification based on magnetic materials. So in diamagnetic materials, that is in which the orbital magnetic moment and electron spin magnetic moment cancel each other, making net permanent magnetic moment of each atom is equal to 0. So this is all about the diamagnetic material. If we talk about the permanent magnetic material, then in which the orbital magnetic moment and spin magnetic moments do not cancel each other, resulting in a net magnetic moment of an atom. So this is a major difference between a diamagnetic material and paramagnetic material. Next one we have ferromagnetic material, in which the atoms have large dipole moment due to the electron spin magnetic moment. Fourth one is anti-ferromagnetic material, in which the dipole moment of adjacent atom line up in anti-parallel fashion. Okay student. And if we talk about the ferrimagnetic material, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला पार्ट, the material in which the magnetic dipole moments are lined up in anti-parallel fashion, but the net magnetic moment is non-zero. That is a major difference between the ferrimagnetic and other. If we talk about the super magnetic material, the ferromagnetic materials are suspended in the dielectric matrix, and even though each particle of it
contain large magnetic domains but cannot present adjacent particle. Okay, so this is how we classify the magnetic materials. Now we have the magnetization and permeability. Magnetization, in which the field produced due to the movement of bound charges, and magnetization is defined as the magnetic dipole per unit volume. Magnetic dipole per unit volume. The application of magnetizations are in various fields, that is burglar alarm, magnetometers, MRI, microphones, loudspeakers, car horns, electric bulb. These are the various general applications where we found the magnetization property in great aspect. Next, we have the student regarding the permeability, that is mu, and permeability of a medium is defined as the product of permeability of free space and relative permeability. The formula will be given as mu is equal to mu naught into mu r. तो ये प्रोडक्ट है फ्री स्पेस का और रिलेटिव परमेबिलिटी का. तो स्टूडेंट आगे हमने म्यू आर की वैल्यू को लिखा हुआ है 1 प्लस जाई एम. जाई एम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ मीडियम, दैट डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी है ये, और म्यू आर जो है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये भी डायमेंशन लेस है. तो आप जैसे कि देखेंगे स्टूडेंट कि आई बी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आई बी डी एस इंटू डी एल. तो ये बन जाएगा मैग्नेटाइजेशन के जो एम डी एल. तो आई बी को हम कंटूर में देखेंगे एम डॉट डी एल. तो टोटल करंट आई टी होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ एच डॉट डी एल बी म्यू नॉट क्लोज कर्व डी आई. तो ये हमारा रिलेशन आई टी इज इक्वल टू क्लोज कर्व बी ओवर म्यू नॉट डी एल बन जाएगा. और देखिए टोटल जो करंट होता है वो होता है बाउंड करंट प्लस फ्री करंट. तो बाउंड करंट हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है एन टाइम्स ऑफ आई बी डी एस, ओके, और इंटू डी एल. तो यहाँ देखिए स्टूडेंट आई जो है आई टी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई फ्री करंट. तो आई इज इक्वल टू कितना हुआ, आई टोटल माइनस आई बाउंड करंट. तो टोटल की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, बी ओवर म्यू नॉट इंटू डी एल माइनस एच डी एल. तो दोनों में से अगर आप देखें स्टूडेंट तो हमारे पास डी एल कॉमन आएगा. तो बी ओवर म्यू नॉट माइनस एच का इसमें ब्रैकेट ले लिया. कंपेयर आई एंड सम एम्पियर सर्किट लॉ. तो आप देखेंगे स्टूडेंट बी ओवर म्यू नॉट माइनस एम इज इक्वल टू एच एंड बी ओवर म्यू नॉट इक्वल टू एच प्लस एम. तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच प्लस एम. एम की वैल्यू जो है जाई एम इंटू एच है. तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन जैसे कि आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 के अंदर. ओके, सो बी इज इक्वल टू म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच. दिस इज इक्वेशन 2. तो फर्स्ट और 2 को इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे स्टूडेंट विल गेट द 1 प्लस आई एम इज इक्वल टू म्यू आर. एंड म्यू आर जैसे कि रिलेशन में आप म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर से लेते हैं तो म्यू आर की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, म्यू डिवाइड बाई म्यू आर. दैट इज म्यू आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. ठीक है. तो तीसरे और चौथे को जब हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट तो 1 प्लस जीटा एम इज इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर. तो इन दिस वे वी विल able to calculate the values of permeability in the susceptibility times. Okay, so in this lecture we will discuss the various aspects of the mutual inductance. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे. तो इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट. तब तक के लिए थैंक यू.